A very good morning to one and all. Honorable Principal Sir, the Chief Guest of today's program, Sri S.C. Sharma Sir, all the learned teachers and dear students. Today we all are gathered here on a very special and auspicious occasion, the Teachers' Day ceremony. And we are also going to be a part of Teachers' Felicitation ceremony also. So first of all, I would like to welcome our today's chief guest, Honorable S.C. Sharma Sir, and he was born in the state of Himachal Pradesh in the district Hamirpur. First, he was appointed as an education instructor in Indian Air Force. After that, he became the part of education department and he served in different schools as an English lecturer. Later on, he became the principal in different Vidyalayas of Himachal Pradesh, and at last he became the deputy director in higher education in the state Himachal Pradesh. So we heartily welcome you, sir. So on this gracious and auspicious occasion, I invite IC Namdev to welcome our chief guest with a bouquet, with a token of love from Kendriya Vidyalaya, IUC Namdev. So give a big round of applause. Thank you, sir. Thank you, Honorable Principal sir. आज का ये अवसर बड़ा निराला है, आज का ये अवसर बड़ा निराला है, आज यहाँ नूर बरसने वाला है, आज यहाँ नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है, कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो नाउ आई इनवाइट मिस गरिमा मैडम फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम। भारतीय परंपरा में वेद प्रचलन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय एवं हमारे विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय से अनुरोध करती हूँ कि आप दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय अतिथि महोदय एवं प्राचार्य महोदय। Thank you, sir. Thank you, our chief guest, sir, and honorable principal, sir. ज्ञान से बढ़कर ज्योति नहीं, न ज्ञान से बड़ा धमाका है। ज्ञान से बड़ी न शक्ति बनी, न ऊंची विजय पताका है। इसी ज्ञान के शस्त्रों से मुश्किल के पंख कतरना है। जीवन के हर कोने को ज्ञान से जगमग करना है, ज्ञान से जगमग करना है। एक बार पुनः आपका अभिनंदन आदरणीय प्राचार्य महोदय, समस्त विद्वान शिक्षकगण, हमारे मुख्य अतिथिगण, समस्त प्रांगण में बैठे हुए विद्यार्थी, आप सभी का एक बार पुनः इस बेला में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए आई इनवाइट माही वर्मा फॉर द फर्दर कोऑर्डिनेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। माही वर्मा। Thank you, sir, for inviting me and giving me this big opportunity in this auspicious program. The world is full of diamonds and gems,
and we have some of them here today. With this note, I, Mahi Verma, on behalf of all students, would like to give our heartiest welcome to our Chief Jester, Mr. Sri H.C. Sharma, Retired Education Officer, Government of Himachal Pradesh, our Honorable Principal, Mr. S.R. Kujur, all respected teachers and my dear friends on this auspicious occasion of Teachers' Day. So, without wasting any time, let's call Master Shaurya Kumar of 12th A to greet us with his word. Shaurya Kumar, 12th A. आपसे ही सीखा, आपसे ही जाना, आप ही को हमने गुरु है माना। सीखा है सब कुछ आपसे हमने, कलम का मतलब आपसे जाना। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड HM मैम, टीचर्स एंड ऑल माय डियर स्कूलमेट्स, आई विश you all a very good morning. I am here with my words on this auspicious occasion on the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, which we celebrate every year as Teachers' Day. It is a matter of a great honor to express myself here. Teachers play a very important role in shaping the future of their students. Right from kindergarten to university, they are the ones who impart knowledge and teach us about everything important. They also teach us about ethical values and imbibe in our moral values. Thus, we can say that teachers shape our personality into something very strong and wonderful. A world without teachers would be definitely pathetic. There are only a few people in our lives who teach us about there are only a few people in our lives who impart our world, and teachers are definitely one of them. At last, I wish you all a very happy Teachers' Day. All the creators of future of our country never step back from their duties. With this, I wholeheartedly welcome you all at this celebration. So let's begin. For the further announcement, I again invite Mahi Verma. Thank you. नृत्य मेरी भाषा है, नृत्य मेरी अभिलाषा है, नृत्य मेरा सम्मान है, नृत्य मेरी पहचान है, नृत्य मेरा जुनून है और नृत्य ही मेरे दिल का सुकून है, नृत्य ही मेरे दिल का सुकून है। इसी विचार के साथ जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ मैं मानवी बागड़कर कक्षा 8वीं ब को इस मंच पर कि वो आए और अपना नृत्य प्रदर्शित करें। मानवी बागड़कर।
तत्ते तम दिता ते 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 तत्ते का तत्ते 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 के न तुम तत्ते तत्ते के न तुम तत्ते को तत्ते के न तुम काम अति सुंदर नृत्य प्रस्तुति के लिए। Being a teacher is not an easy job. It takes dedication, determination, sense of cooperativeness to be an excellent teacher. So 3 cheers for all our teachers. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Now I would like to call Mahi Singh and Neha Bhagat of class 12th A on stage to share their experience of being teacher for one day. Mahi Singh and Neha Bhagat. Good afternoon, Honorable Chief Guest, Principal Sir and my dear friends. जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से हमें ये अपॉर्चुनिटी जो हम टीचर्स आज बने हैं, हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी। कुछ टाइम से हम टीचर्स डे सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। इस साल हम लकी हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम टीचर्स बने, एक्सपीरियंस करें कि कैसे पढ़ाया जाता है। जैसा कि आज सुबह मैंने कहा कि टीचर इज़ वन हु नॉट ओनली टीचर्स बट लर्न समथिंग फ्रॉम हिज जर्नी। So today I got this opportunity to learn many things and it is not an easy task. I learned a lot from my juniors and I got chance to know them and I want to share something that I am a bio student but मुझे personally SST सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। स्टार्टिंग से मुझे SST में इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट चुना कि मैं SST पढ़ाऊँ। और सब्जेक्ट पढ़ाना एक अलग साइड होता है और अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ाना इज़ डिफरेंट। और मैंने अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ा के इतना ज़्यादा एंजॉय किया। नाउ आई कैन इमेजिन कि हमारे टीचर्स और हमारे स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं ड्यूरिंग द क्लासेज एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स व्हाट दे आर थिंकिंग एंड इट इज़ हार्ड टू एक्सप्लेन दैम ऑल द थिंग्स एंड thank you for understanding me and thank you. First of all, a very good morning teachers and my dear friends. Happy Teachers Day teachers to my all teachers and principal sir. मेरा आज परेड था 11th B में। जैसे कि सारे टीचर्स होते हैं कि बच्चे कितना रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, कितना लाउड करते हैं, आपके ऊपर मैटर करते हैं कि आप कितने अच्छे से पढ़ाते हो। मैं 11th B में गई, मेरा एक्सपीरियंस यही था कि बच्चे थोड़ा शोर कर रहे थे, सारे बच्चे बोल रहे थे मैम गेम। मेरे हिसाब से मेरा ये था कि आप रोज़ दिन गेम खेलते हो, आज एटलीस्ट हमसे थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो कि आप कैसा पढ़ना चाह रहे हो करके। बच्चे शोर कर रहे थे फिलहाल, बट ये भी होता है टीचर्स का कि बच्चे शोर करते तो वो पढ़ा भी नहीं पाते। अब उन पे इतना प्रेशर रहता है कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है करके। मैं आज 10th पे में गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 11th पे में प्रिपेयर करके नहीं आई थी कि मुझे क्या पढ़ाना है, बट मैम ने बोला कि आप एटलीस्ट एक क्लास को पढ़ाओ करके। मैंने 10th में पढ़ाया, मैंने रिवाइज भी नहीं की थी, बट आप जिस फील्ड में आपको जो अच्छा लगता है, आप जो करना चाहते हैं उसे आप ज़रूर करना चाहिए। मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने टॉपिक बस देखा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी, जो भी हमारा इकॉनमी का है। मैंने उन बच्चों को पढ़ाया, बच्चे इतने शांत थे, बच्चे इतने अच्छे से सुन रहे थे मेरी बात कि टीचर्स को पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। मतलब कि बच्चे अगर आपके साथ कोऑपरेट करें तो वो टीचर्स भी बहुत खुश रहते हैं। टीचर्स अगर बच्चे कोऑपरेट ही नहीं करते तो टीचर्स भी कुछ कर नहीं सकते, उनके हाथों में नहीं है वो चीज़। सो मैं यही कहना चाहूँगी बच्चे लोग से
आप थोड़ा सा, आपके जो टीचर्स हैं वो भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी आपको पढ़ाने के लिए पढ़ के आते हैं, आप एटलीस्ट उनकी बातों को समझें, सुने कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए यूज़फुल है। हालांकि हम टीचर को मौका नहीं देते हैं, हमारे टाइम पे ऐसा होता है कि कोई न्यू टीचर आते हैं, वो थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाते हैं, तो हमें समझ नहीं आता और हम शुरू में ही उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। अगर आप उनको मौका नहीं दोगे तो वो टीचर्स बनेंगे कैसे? सो आप एटलीस्ट कोशिश करो उसको जानने का कि वो बताना क्या चाहते हैं आपको, कि वो पढ़ाना किस तरीके से चाह रहे हैं। आप एटलीस्ट अगर वो गलती करें तो आप उन्हें बताओ, क्योंकि आपका भी फर्ज बनता है कि आप स्टूडेंट हो उनके। सो मैं यही कहना चाहूँगी टीचर्स को, एंड टीचर्स आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो कि हमें इतना अच्छे से पढ़ाते हो। मैं इस चीज़ के लिए सॉरी कहना चाहूँगी कि हम लोग अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं और हम लोग उस चीज़ को जान नहीं पाते हैं कि कितना वो लोग भी स्ट्रगल करते हैं, वो लोग भी कितना अपना टाइम वेस्ट करके हम पर वेस्ट करते हैं और हम उनकी बातों को ध्यान भी नहीं देते हैं जो कि। आज मैंने टीचर बन के ये एक्सपीरियंस लिया कि टीचर्स को भी पढ़ाने के लिए खुद से पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। वो ऐसे ही नहीं आते आपको पढ़ाने के लिए, जैसे कि आप पहले से पढ़ के आते हो कि आपको समझ है, वैसे ही वो भी पढ़ के आते हैं। सो मैं बोलना चाहूँगी बच्चों को कि वो प्लीज़ टीचर्स के साथ कोऑपरेट करें और उन्हें रिस्पेक्ट दें, क्योंकि सब जानते हैं कि एक टीचर्स के लिए सबसे बड़ा होता है उनका रिस्पेक्ट। अगर बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो उनके लिए वो कुछ नहीं है, बाकी चीज़ें वो बच्चे उनके साथ वो एक्सपीरियंस वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो कुछ भी नहीं है। टीचर्स एंड जो बच्चे का रिलेशनशिप होता है वो एक रिस्पेक्ट और एक पढ़ाई पे बेस होता है कि आप उस चीज़ को बॉन्डिंग को कितने अच्छे से रखते हो। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि सब अच्छे से रखें अपनी बॉन्डिंग को, कभी भी किसी को इस तरीके से टॉलरेट ना करें कि वो बोले कि हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस क्लास, या फिर ये अच्छा नहीं है मेरे लिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी आए टीचर खुशी से रहे, बोले कि हाँ ये बच्चे मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं, कि वो ये कहे कि हाँ ये बच्चे इतने अच्छा एक्सपीरियंसफुल है कि मेरी बात को, भले ये नहीं पढ़ रहा बच्चा, पर ये मेरी बात को सुन के जो समझ रहा है, जो कर रहा है, वो कहे कि ये बच्चा हाँ पढ़ सकता है, ये बच्चा कर सकता है, नहीं कर सकता तो मैं इसकी गारंटी ले सकती हूँ। सो मैं टीचर्स को थैंक यू कहना चाहूँगी एंड स्टूडेंट थैंक यू, कि स्पेशली टाइम बी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन लोगों ने इतने अच्छे से मेरी बातों को सुनी और समझी और एंड टाइम तक मेरे साथ जुड़े रहे, मेरी बातों का, सवालों का जवाब दिया। सो थैंक यू। Thank you Mami and Neha for very nicely explaining that what it takes to be a teacher and their efforts and hard work to make us well-educated person. Thank you. अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते। आप हमें सिखाते हो, आप हमें पढ़ाते हो, हम बच्चों का भविष्य आप ही तो बनाते हो, आप ही तो बनाते हो। अब मैं तनिषा वैष्णव को यहाँ आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो आए और हम सबके समक्ष कविता के रूप में अपने विचार लेकर उपस्थित हों। तनिषा वैष्णव। गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया, एक अच्छा इंसान बना दिया। सुप्रभात, मैं तनिषा वैष्णव 11वीं व की छात्रा आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आज सबके समक्ष एक कविता लेके प्रस्तुत हूँ एंड माई दिस पोएम इज ऑल डेडिकेटेड टू माई टीचर्स। सो लेट्स बिगिन। चलो कहता हूँ कुछ अल्फाज में, चलो कहता हूँ कुछ अल्फाज में, जो ये सिलसिला हो चला शुरू है। मैं कहने जा रही हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्हें कहते लोग गुरु हैं। वैसे दिखने में तो ये एक आम इंसान है, पर सच मानो हमारे लिए भगवान है। इनका कर्ज उतारना ना आसान है, इनके बिना ये जिंदगी हमसे अनजान है। इनके सहारे ही हम परिंदे आसमान में परवाज पाते हैं। हमारी कैसी भी मुश्किल हो चाहे, ये हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं।
इनका और हमारा रिश्ता एक अजीब सा एहसास है। इनका हमारी ज़िंदगी में होना बस यही हमारे लिए खास है। यूँ तो हमारी ज़िंदगी में मगरूरी बहुत है। कई बार हम खुद को इनकी नज़रों में गिरा देते हैं। संभल जाओ यारो, अभी हमारे ख्यालों में कमज़ोरी बहुत है। बेलोश मोहब्बत के गवाह हो आप, आपके सामने छोटे हैं वो हर अल्फाज। हमारी बस एक ही दुआ है उस रब से, उठे न सर से कभी आपका हाथ, कभी उठे न सर से आपका हाथ। एक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का क्या महत्व है, क्या भूमिका है, यह बात तो किसी से छिपी नहीं है। उनकी शिक्षा के वजह से ही व्यक्ति में आत्मविश्वास का संचार होता है, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने का चाहत रखता है। मेरी आगे की पंक्तियाँ भी कुछ विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक के इसी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। तो सुनिएगा। हर प्रकार से नादान थे तुम, गीली मिट्टी के समान थे तुम। आकार देकर तुम्हें बड़ा बना दिया, आज अपने पैरों पर तुम्हें खड़ा कर दिया। हारे हुए इंसान के भीतर ना टूटने वाली उम्मीद जगा दे कर्म मेरे इतने अच्छे कि ऐसे शख्स को भगवान मेरा गुरु बना दे। नहीं है कोई शब्द कैसे करूं धन्यवाद, बस चाहिए सर पर आप सबका आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद। हूँ जहाँ आज मैं उसमें है बड़ा योगदान आप सबका, जिन्होंने दिया है मुझे इतना ज्ञान। आओ मिलकर इस शिक्षक दिवस पर इन सभी महान आत्माओं का सत्कार करें। शत आयु यह ज्ञान के सागर सारे, ऐसे सारे गुरुओं को प्रणाम बारंबार करें। जिसकी सफलता का पैमाना मेरा सफल हो जाना है, जिसकी सफलता का पैमाना मेरा सफल हो जाना है, वही गुरु के वात्सल्य की सृजन सशक्त परिभाषा है। हे गुरुवर, यदि हमने आपका अनादर किया हो तो क्षमा मांगता हूँ। आपके निर्मल निस्वार्थ स्वरूप को ही मानवता का परिभाषा मानता हूँ। अपना आशीष मेरे शीश पर सदैव रखना। भटक चुका हूँ इस चक्रव्यूह में, मैं आप ही को अपने रथ का सारथी मानता हूँ। मैं आप ही को अपने रथ का सारथी मानता हूँ। गुरु वही जो जीना सिखा दे, आपसे आपकी पहचान करा दे। मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ जाओ तुम, वह तुम्हें इतना समझदार बना दे, वह तुम्हें इतना समझदार बना दे। तराश दे हीरे की तरह तुमको, दुनिया के रास्तों पर चलना सिखा दे। दुनिया के रास्तों पर चलना सिखा दे। दुनिया के रास्तों पर चलना सिखा दे। धन्यवाद एंड हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद तनीषा, आपकी सुंदर कविता ने हम सबका मन मोह लिया। इस कविता ने हमारे अंदर शिक्षकों के प्रति जो सम्मान की भावना थी उसे और भी बढ़ा दिया। धन्यवाद तनीषा। टीचिंग इज अ कॉलिंग टू, and I have always thought that teachers in their way are holy angels leading their flock out of the darkness. Students don't care how much you know until they know how much you care. Teaching is indeed not an easy task. It is not easy to make each and every student pay attention to the lesson, but our teachers are making this thing possible every day. Hats off to them. So now I would like to call Gaurav Geharwal of class 12th A to share his experience of being teacher. So put your hands together for Gaurav Geharwal, class 12th A. Good afternoon, Honorable Chief Guest, Principal Sir, teachers and my friends. आज मैं आप सबके सामने मैं अपना टीचिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि आज टीचर डे के अवसर पर मैंने पढ़ा के
क्या कुछ महसूस किया और क्या फील किया। तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि दो क्लासेस मैंने लिए फिजिक्स के, और पढ़ाने के बाद बहुत अच्छा फील आया। और एक चीज़ ये नोटिस की कि सारे बच्चों का जो अटेंशन है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट लगता है मेरे को, क्योंकि जब सारे बच्चे ध्यान से सुनते हैं तब टीचिंग का जो वो है पढ़ाने में अच्छा लगता है। और बाकी पढ़ाने के बाद जो बच्चों से क्वेश्चंस पूछे और उसके बाद जो आंसर्स मिले उससे भी बहुत अच्छा लगा। और ये भी मैंने महसूस किया कि किसी अकेले बच्चे को पढ़ाना और सारे बच्चों को जिनकी थिंकिंग कैपेसिटीज़ अलग अलग है उनको साथ में पढ़ाना भी एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, जो हमारे टीचर्स उसको अच्छे से हैंडल करना जानते हैं। और ये भी मैंने ऑब्जर्व किया कि केवी के टीचर्स बनना एक अलग सा प्राउड सा फील आता है मेरे को, और इसीलिए आज बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में मैं आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे कहना चाहूँगा, और सभी टीचर्स अपना आशीर्वाद इसी तरह हमारे ऊपर बनाए रहे। थैंक यू। Now I would like to call Vahi for further explanation. Thank you, Mahi. First of all, a very warm good morning to respected chief guests, honorable principal sir, all the teachers and my fellow mates. Hope you are enjoying the day. First of all, happy Teachers Day to all my dear respected teachers present here. Today I am feeling extremely happy to be able to welcome our respected and prestigious teacher on the occasion of Teachers Day. Words fall short when I start describe how important the role of teacher plays in any student's life. I can only say what our Vedas also teach us, that Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurve Namah, Tasmai Shri Gurve Namah. It means Guru is the Brahma, who is the creator of universe, and Guru is the foster of world like God Vishnu. Guru is Lord Shiva and supreme power. I greet such a Guru like God. I greet such a Guru like God. Before ending my words, I invite the girls of class 11 to show their feelings and gratitude towards teacher by their performance. So let's enjoy this beautiful performance.
हमें है कि हमसे प्यार करते हैं वो, दिए की ज्योति सी तुम्हें मोती, ये दुनिया इतनी हसीन ना होती, हमें भी सलीका न होता, जीने का तरीका न होता। ओ टीचर तुमसे ही पाया है सभी, के भूलेंगे ना तुमको हम कभी। ऐसा कुछ है क्यों कभी गुस्सा कहना है एक बड़ा सा थैंक यू, ऐसा कुछ हुआ नहीं, रोज दिखाते जाए कुछ नया, या दुनिया हाथों में रख दे। Thanks a lot, lots of love, many ways just to say thanks a lot। सुबह हो या शाम चाहे जो भी हो काम होगा पहले बस तुम्हारा नाम। Thanks a lot, lots of love, many ways just to say thanks a lot। धन्यवाद लोकेश्वरी, मौली, वैदेही, चेष्टा, वैशाली and Nadishri. Now I invite Mahi Verma. Thank you Mahi, Vaidehi and group for your fabulous performance. A big round of applause for them guys. Our teachers are like candles. Whole life they burn to provide their surrounding light. They never gave up on us. They keep praising us until we reach our destiny. I would like to thank all my teachers. Thank you all. Continuing this thought, I would like to call Mahi Namdev of class 11th A to express her thoughts. Mahi Namdev. Good morning, respected principals, sir, teachers, and my dear friends. It's my honor and extreme privilege to stand here today. On this important day, I want to express my feelings for those who are considered the backbone of any society, the teachers. I'm sure when I say this, I am speaking on the behalf of all students here. We are highly grateful for what our teachers have done to build our foundation for tomorrow, and for all that they are capable of contributing to our lives. We are celebrating Teachers' Day today, which is essentially celebrated to commemorate the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was one of the best scholars and teachers this country has ever seen. He also the second President of India. Students across the country celebrate this day in schools and colleges to thank the teachers and pay tribute to their exemplary work. They shape us for their bright future, guide us to face the world's challenges and push us to achieve our dreams. Teaching is not just a noble profession, it's also one of the greatest contributions to mankind. We often hear people saying that teachers are considered greater than parents. That is because while they give us birth, the teachers mold our personality. They make us the best citizens of this country. One of the best things to offer anyone in life is wisdom, and our teachers give that to us every day. They teach us to become successful and kinder people in life. They give us the courage to endure setbacks in life. They show us the way to move on. They tell us that it's not so bad to fall every time we want to achieve something. They are the ones telling us the world throws hardship in our way.
when we are expecting it the least. They guide us that there will always be that one window open when all the doors seem closed in life. Teachers are our best friends and best critics. I bow my head down and offer my deepest gratitude to them today and forever. Happy Teachers' Day to all. Thank you. Thank you very much, Mahi, for your encouraging words. अब मैं आप सबको एक कहानी से अवगत कराना चाहती हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव में एक शिक्षक हुआ करते थे। उनका मानना था कि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित ना रहे। तो एक दिन वो अपने गांव के सर्वेक्षण यानी सर्वे के लिए निकले। उन्होंने देखा सारे बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, पर एक बच्चे को किसी ने भी स्कूल नहीं भेजा, उसे किसी ने भी दाखिला ही नहीं दिलवाया। तो वो उस बालक के घर पहुंचे और पूछा कि उन्हें स्कूल क्यों नहीं भेजा जा रहा। तो उनके माता पिता ने जवाब दिया कि वो बोल नहीं सकता, तो फिर वो क्या आगे पढ़ेगा, वो आगे अपनी ज़िंदगी में क्या ही करेगा। तो शिक्षक ने उसके विपरीत उनसे कहा कि ऐसी बात नहीं है, आप कल से उन्हें स्कूल भेज दीजिए और उन्हें किसी स्पेशल स्कूल में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक साधारण स्कूल में ही पढ़ेंगे। तो अगले दिन से वो बच्चा स्कूल जाने लगा। तो अगले दिन से शिक्षक ने उसके साथ बातचीत करना स्टार्ट की। मतलब सारे क्लासेस हो जाने के बाद वो आधे घंटा एक्स्ट्रा उसके साथ बैठता और उसके साथ जैसे वो बोलता आ बोलता तो वो आ बोलता, माँ बोलता तो वो माँ बोलता, वो बच्चा जो भी बोल पाता उसके साथ ऊंचे स्वर में बोलता। इसी तरह कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद उस बच्चे का फाइनली गला खुल गया और वो बोलने लगा और आखिरकार वो बच्चा बहुत ही आगे बढ़ा अपनी ज़िंदगी में। तो इसी कहानी के साथ मुझे एक श्लोक याद आ रहा है। मूकम करोति वाचालम पंगुलंघ्यते गिरिम यत्कृपा तमहे वंदे परमानंद माधवम। अर्थात जिनकी कृपा से गूंगे बोलने लगते हैं, लंगड़े पहाड़ को प्यार करने लगते हैं, उन परमात्मा परमानंद स्वयं श्री माधव को मैं वंदना करती हूँ। हालांकि ये श्लोक श्री कृष्ण जी की वंदना हेतु लिखा गया था, पर आज मैं अपने शिक्षकों के लिए कह दूं तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं हृदय की गहराइयों से अपने सभी शिक्षकों एवं हमारे मुख्य अतिथि श्री एच.सी. शर्मा जी का पुनः नमन करती हूँ। तो इसी कड़ी में मैं आदरणीय डॉक्टर अमरनाथ पाठक सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपने वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर अमरनाथ पाठक सर। A very good morning to respected principal sir, all respected teachers, our honorable chief guest, my dear students. So I am very thankful that I have given this opportunity to speak on this auspicious occasion. Before beginning my speech, I would like to ask one question from all the students present here. How many of you have greeted your parents a happy Teachers' Day before coming to school? Okay, so only a few hands. You know, all of us know that our parents are our first teachers. So it's a very humble request to all of you that please, after going from here, after going home, please greet your parent a very happy Teachers' Day, because they are your first teacher. Because of them, you have started learning ABCD, you have started speaking mummy, papa and words like that. Okay, so please go and greet your parents. Apart from that, students, trust me, it's a very important moment for you all. As I am saying this, I am feeling very emotional because I am recalling my school days, my BTech times, my MTech times. I am recalling the faces of all my professors, all my teachers who have taught me, and because of them I am here. So trust me that it's a very special moment, and instead of being indisciplined, you should try to enjoy this moment. You should try to hear each and every word of your teachers, of the students who are delivering a speech here, and trust me, it will be very beneficial for you.
Apart from that, I would like to say that many students have shared their experiences over here, and you must have realized that teaching is not only about delivering lectures in the class, it's not only about delivering content, but it's also about maintaining discipline in the class. It's also about handling all sorts of students in the class, and it's also about managing discipline and taking care of each and every student's interest. So it's a very broad concept. Teaching for me is a very broad concept. We need to take care of multiple things, and you must have realized after teaching your juniors. So I'm expecting that in the coming future you will show more gratitude to your teachers. You will be more disciplined, and you will be a better student than what you are currently. Thank you all of you, and happy Teachers Day once again. धन्यवाद सर। आपके प्रेरित करने वाले अनमोल शब्दों ने निश्चित तौर पर हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु आदरणीय मिस्टर लोकेश सर और गरिमा मैडम को ये मंच ससम्मान सौंपती हूँ। लोकेश सर और गरिमा मैम। Thank you, Mahi. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way, dreary desert scent of dead habit, where the mind is led forward by into ever-widening thoughts and actions. So, dear students, these are the words of the poem composed by the first Nobel Prize winner of India, Sri Rabindranath Tagore, who got Nobel Prize for Literature in 1930. So we all have to do such work that make our country proud, that make our parents feel proud, that make our teachers feel proud. So we have to be a good citizen so that we can keep our heads held high. आपका सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहे, ऐसे कार्य हमें करने हैं। आपके माता पिता, आपका क्षेत्र का नाम रोशन हो, ऐसा हम आपसे अभिलाषा रखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कुछ मस्तक काम पड़े होंगे जब महाकाल की माला में माँ मांग रही होगी आहुति, जब स्वतंत्रता की ज्वाला में पल भर भी पड़ असमंजस में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इन द वे ऑफ सक्सेस, in the way where you want to be, where you want to go, there will be so many obstacles, there will be so many hurdles in your path, but you have to overcome all of them. And how you will overcome? You will have to learn this technique by your teachers. You will have to be self-confident, you will have to be self-driven, you will have to be patient, you will have to be disciplined, you will have to be knowledge acquiring the student who is always ready to acquire knowledge. So knowledge is above all the things. So knowledge, we can say, is the name of God. So all the dear students, kindly move towards the knowledge. आप सभी से यही आशा की जाती है, आप सभी ज्ञान को बटोरने की तरफ बढ़े हैं और आगे आप भी विभिन्न क्षेत्रों में भारत के योगदान देंगे। सो नाउ आई वुड लाइक टू inform you, respected sir, that today some of our students of 12th A or 12th B, they have performed the role of teachers. So as per the instructions or advice received from honorable principal sir, those students, teachers were observed by different judges. So that we can give them award, so we can give them a token of appreciation.
So I invite our today's chief guest to give them a token of love to the students. So, sir, I call the name one by one, subject by for science and maths. So I also invite honorable principal sir along with our chief guest sir. So first from science and math section, the third prize goes to Rupam Sahu. Rupam Sahu, wherever he is, kindly come and collect your award. Rupam Sahu. So Rupam Sahu was judged by Sri Satyanarayan Reddy sir, Mrs. Aman Kumari madam and Mrs. Amrita madam, and he got second rank. A big round of applause to Rupam. And second prize goes to Anjali Vaishnav. Second prize goes to Anjali Vaishnav. Anjali Vaishnav. And Anjali Vaishnav is there. I can see her. So give a round of applause. Next, the first award goes to, first prize goes to Gaurav Gehrwar, class 12 से Gaurav Gehrwar for teaching physics. So, Honorable Sir, I would like to inform you that Gaurav Gehrwar is the school captain also. So, Gaurav Gehrwar. Thank you, sir. Now for language section, English, Hindi or Sanskrit, the third prize goes to Nishi Pandey. Nishi Pandey. And the second prize goes to Dipali. Dipali. Second prize goes to Dipali. And first prize goes to Ayushi Namdev. She is Nishi Pandey. Ayushi Namdev. Honorable sir, I would like to inform you that she is the school captain girls and she has got the first position. Thank you, sir. Now, coming to SST or commerce section, the third prize goes to Vivek Janghel. Vivek Janghel. And second prize goes to Mahi Singh. Mahi Singh, kindly come and collect your award. And first prize goes to Neha Bhagat. Give a big round of applause. Mahi Singh and Neha Bhagat, please come and collect your prize. Neha Bhagat. Now for miscellaneous subjects, the third award goes to Purva Sahu. Purva Sahu, third award. Third position goes to Purva Sahu. And second position goes to Vikas. Second position goes to Vikas. And first position goes to Naina Gupta. First position goes to Naina Gupta. Give a big round of applause. Now coming to primary classes. Coming to primary classes, the third prize goes to Dharini. Dharini. Third prize goes to Dharini. Dharini, wherever you are, please come and collect your prize. Second prize goes to Himadri Banjari. And first prize goes to Srishti Sahu. Second prize goes to Himadri Banjari
and first prize goes to Srishti Sahu. सृष्टि साहू लिखा हुआ है। ओके, तो थैंक यू सर। Okay. One special prize is also there. Aryan Sirmor. I invite Aryan Sirmor, who has played the role of principal today. In today's role, he has played the role of principal. So I invite Aryan Sirmor also. Aryan Sirmor coming, wearing his coat. So Aryan Sirmor, kindly collect your reward. Thank you, sir, for giving your valuable time. So thank you all the winners of today's program. So now I invite Dr. Shravani Madam for further program. Dr. Shravani Madam. धन्यवाद सर। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्राचार्य महोदय, मुख्य अध्यापिका महोदय, विद्वान शिक्षक वृंद एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज और सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पावन उपलक्ष्य में मैं केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़ के होनहार विद्यार्थियों के कुछ उत्कृष्ट प्रदर्शन के उदाहरण आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। आप सभी के साथ इस विद्यालय की संगीत शिक्षिका होने के नाते मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि हर वर्ष की भांति पिछले सत्र 2021-22 में भी केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़ के छात्र छात्राओं ने बेहद उत्कृष्ट प्रदर्शन किया संगीत के क्षेत्र में एवं कला के क्षेत्र में, और कला उत्सव तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आज़ादी का अमृत महोत्सव में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर रायपुर रीजन का प्रतिनिधित्व किया राष्ट्रीय स्तर पर, जो अपने आप में बहुत ही गर्व करने की बात है। आप सभी के बीच से ही वे बच्चे हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने संभाग क्लस्टर से बल्कि रायपुर संभाग से फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया, और केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़ के बच्चे रायपुर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं चाहूँगी कि एक बार जोरदार तालियों सबसे पहले मैं 2021-22 सत्र के कला उत्सव के बच्चों के नाम लूँगी जिन्होंने रीजनल लेवल पे तथा नेशनल लेवल पे भी कुछ कॉम्पिटिशन्स में स्थान प्राप्त किया था। सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है कि ताली लास्ट में बजाएंगे क्योंकि आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी लास्ट तक। तो कुणाल जंघेल जो लास्ट ईयर क्लास 12th में थे, उन्होंने संगीत वादन की पारंपरिक विधा में, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल फोक। तो सबसे पहले मैं कला उत्सव के बच्चों के नाम लूँगी जिनमें से कुछ बच्चों के सर्टिफिकेट्स आए हैं। तो सबसे पहले कुणाल जंघेल जो क्लास 12th में थे लास्ट ईयर, प्लीज बेटा डोंट क्लैप नाउ, विल क्लैप ऑल टुगेदर इन द लास्ट। तो कुणाल जंघेल क्लास 12th में थे जिन्होंने ट्रेडिशनल फोक इंडियन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में परफॉर्म किया था और 3rd रैंक प्राप्त किया था रायपुर रीजन में, वो पास आउट हो चुके हैं। देन श्रुति साहू ने संगीत गायन में पारंपरिक लोक विधा में 3rd रैंक प्राप्त किया था। श्रुति साहू को मैं यहाँ मंच पे बुलाना चाहूंगी। अब मैं जिन बच्चों के नाम ले रही हूँ वे मंच पे आते जाएंगे। श्रुति साहू, माफ कीजिएगा, मैं
मुख्य अतिथि महोदय तथा प्राचार्य महोदय से आग्रह करूंगी कि वे कृपया मंच पर आएं और बच्चों को सर्टिफिकेट्स प्रदान कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। श्रुति साहू ने संगीत गायन में पारंपरिक लोक विधा में लोकगीत प्रस्तुत किया था और रायपुर रीजन में 3rd रैंक प्राप्त किया था। विप्रांशी पाठक ने संगीत वादन में पारंपरिक लोक विधा में इंस्ट्रूमेंट प्ले किया था और 2nd रैंक प्राप्त किया विप्रांशी पाठक। और जयदीप्त सिंह जाडेजा, इन्होंने संगीत गायन की पारंपरिक लोक विधा में लोकगीत प्रस्तुत किया और रायपुर रीजन में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर कला उत्सव में रायपुर रीजन का प्रतिनिधित्व किया। जयदीप्त सिंह जाडेजा, जिन्होंने 1st रैंक प्राप्त किया। जोरदार तालियां इन सभी विद्यार्थियों के लिए। इन सभी विद्यार्थियों के साथ जो वाद्य संगति की जो उनके प्रदर्शन में 4 चांद लगाया, उन बच्चों का नाम भी मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी। वैभव यादव, जयदीप्त सिंह जाडेजा और कुणाल जंघेल, इन तीनों बच्चों ने इन बच्चों के साथ इनकी एकल विधा में इनके साथ संगत किया था और इनके प्रोग्राम को 4 चांद लगाया था, जिसकी वजह से इन बच्चों का प्रदर्शन कितना उत्कृष्ट रहा। वैभव यादव, जयदीप्त सिंह जाडेजा और कुणाल जंघेल, जोरदार तालियां इन सभी के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। कला उत्सव के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें भी कॉम्पिटिशन्स जो हुए वो क्लस्टर, रीजनल और नेशनल लेवल्स पे हुए। इसमें भी हमारे बच्चों ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उनमें से खुशवंत देवांगन ने एकल गायन प्रतियोगिता में रायपुर रीजन में प्रथम स्थान प्राप्त किया और रायपुर रीजन का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर किया। खुशवंत देवांगन। सानवी लिंगेश्वर वर्मा, इन्होंने भी बालिका वर्ग में एकल गायन प्रतियोगिता में रायपुर रीजन में प्रथम स्थान प्राप्त किया और रायपुर रीजन का प्रतिनिधित्व किया राष्ट्रीय स्तर पर। सानवी लिंगेश्वर वर्मा। इन दोनों ही विद्यार्थियों का वाद्य पर संगत किया वैभव यादव, जयदीप्त सिंह जाडेजा और कुणाल जंघेल ने। मैं एक बार पुनः उन्हें आमंत्रित करूंगी। वैभव यादव, जयदीप्त सिंह जाडेजा, ये वे बच्चे हैं जो लगातार हर कंपटीशन में लगे रहते हैं और इनके सहयोग से ही प्रोग्राम सफल हो पाता है। जो गाना या वादन हो, उसमें जब संगत अच्छी हो तो प्रोग्राम अपने आप उत्कृष्ट स्तर का हो जाता है। धन्यवाद बच्चों। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सत्र 2021-22 में समूह गायन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़ के विद्यार्थियों ने रायपुर रीजन में प्रथम स्थान प्राप्त किया और रायपुर रीजन का प्रतिनिधित्व किया राष्ट्रीय स्तर पर। इनके नाम मैं क्रमशः ले लूंगी। श्रुति साहू, आप आते जाएंगे। श्रुति साहू, विप्रांशी पाठक, पलक ओसवाल, वाणी चोपड़ा, यशस्वी मिश्रा, शिवम आहूजा, स्वरांश वर्मा, त्रिशांत वर्मा, इन सभी विद्यार्थियों ने समूह गायन प्रतियोगिता में रायपुर रीजन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कृपया तालियों से जोरदार इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। वाणी चोपड़ा,
प्रांशी पाठक, और त्रिशांत वर्मा। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और आप ऐसे ही अग्रसर रहें। इन सभी विद्यार्थियों ने हमेशा ये बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और सत्र 2021-22 में केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़ में सर्वाधिक इनाम लेकर आए। एक बार पुनः हम इन सभी विद्यार्थियों का तालियों से अभिनंदन करेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। A teacher is a person who burns himself or herself like a candle, and he burns himself or herself to enlighten others. So teacher is just like a candle who burns himself or herself to enlighten others. एक शिक्षक वो होता है जो अपने आप को दिन रात मोमबत्ती की तरह घिसता है ताकि उसके बच्चे प्रकाशमान हो सके, उनके अंदर ज्ञान का भंडार हो सके और वो ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। Every teacher does his best, but some of the teachers they give their level best to give their student proper knowledge, enthusiasm, self-confidence and recognition. So such teachers in Kendriya Vidyalaya Khairagarh also, there are some teachers for the year academic year 2021-22. Some of our teachers have performed well and they have placed their rank in top 10 in Raipur region. So this is a very great and pride moment for all of us. So I request all the students to give a big round of applause for such teachers. So one by one we will announce their names. For announcing their names who have secured very good PIs in Raipur regions, I would like to invite Garima Dwivedi madam. Garima Dwivedi madam. परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, तब किसी एक से नहीं बल्कि सारे जमाने से बधाइयां मिलती हैं। जी हाँ, आगाज हो चुका है इस कार्यक्रम के उस लम्हे का जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। कार्यक्रम का यह भाग समर्पित है उन शिक्षकों को जिन्होंने अपने उत्कृष्ट पीआई एवं अन्य योगदान के द्वारा इस विद्यालय को गौरवान्वित किया है। अब मैं आज के कार्यक्रम के आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्राचार्य महोदय से करबद्ध अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए और शिक्षकों को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम हमारे विद्यालय के PGT-CS डॉक्टर अमरनाथ पाठक सर को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय अमरनाथ सर IP विषय में 91.07 PI के साथ रायपुर संभाग में प्रथम स्थान पर है। हार्दिक शुभकामनाएं सर आपको। अब मैं PGT इकोनॉमिक्स आदरणीय ललिता मैडम को सम्मान ग्रहण करने हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय ललिता मैडम। ललिता मैम ने अर्थशास्त्र विषय में 57.95 PI के साथ रायपुर संभाग में तृतीय स्थान पर है। धन्यवाद मैम आपको। अब मैं हमारे विद्यालय के TGT SST आदरणीय अरविंद सर को प्राचार्य महोदय को
सर ने सोशल साइंस में 61.97 PI अर्जित कर रायपुर संभाग में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। अब मैं एक बार फिर से डॉक्टर अमरनाथ सर को मंच पर बुलाना चाहूंगी। आईटी के साथ साथ कंप्यूटर साइंस में भी सर ने 77.63 PI अर्जित किया है और वे रायपुर संभाग में तृतीय स्थान पर है। शुभकामनाएं सर आपको। इसके बाद में विद्यालय की संगीत शिक्षिका डॉक्टर श्रावणी मैडम को बुलाना चाहूंगी। आप आए और प्राचार्य महोदय मैडम को उत्कृष्ट पथ प्रदर्शक सम्मान 2021-22 के लिए सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। एक बार पुनः समस्त शिक्षक गणों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन्होंने सिर्फ केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़ का ही नहीं, हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी एक अपना स्थान बनाया है। अनंत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आगे सभी सम्मानित शिक्षकों को, ये बहुत पावन घड़ी है, मैं कुछ अर्ज करना चाहूँगा सभी शिक्षकों के लिए कि मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाएं तूफान, कश्ती का काम है बहना। लहरें बन जाएं तूफान, कश्ती का काम है बहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों का काम है कहना, हमको अपने कार्य पर फोकस करना है और अपने अपने विशेष क्षेत्र में विशेष योगदान देना है। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन डॉक्टर अमरनाथ पाठक सर, मिस ललिता मैडम, मिस्टर अरविंद कुमार सर एंड डॉक्टर श्रावणी मैडम फॉर योर प्राइसलेस एंड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़ और केंद्रीय विद्यालय संगठन। सो नाउ it's a time to invite with a big round of applause. I would like to invite Dr. Amarnath Pathak sir for sharing his views. Dr. Amarnath Pathak sir. Thank you, Lokesh sir. Once again, a very good afternoon to respected principal sir, our honorable chief guest, our respected teachers and dear students. कुछ व्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। पहली बात की बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें इस तरीके का अवार्ड दिया और इस तरीके का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया। बट केवल हम टीचर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसका क्रेडिट हमारे स्टूडेंट्स को भी जाता है। क्योंकि अगर हम केवल पढ़ाते रहें और तो उससे बात नहीं बनेगी। स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी मेहनत किया और जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते रहे उसको उन्होंने प्रॉपरली फॉलो किया। So I am thankful to the students also who gave their best so that we could achieve a rank in the region. एक और बात बताना चाहूँगा कि शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि जब से मैं इस स्कूल में आया हूँ तब से एक भी बार कंप्यूटर साइंस या आईपी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था। 2019-20 में कोविड के चलते एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए थे और 20-21 में एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं हुआ था। ये पहली बार था जबकि कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का एग्ज़ाम हुआ। और जब से पाइथन को इंट्रोड्यूस किया गया, पाइथन लैंग्वेज को, तब से ये पहली बार हुआ है कि सीबीएसई ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया है। अपने आप को असेसमेंट करने का मौका मिला, क्योंकि हर बार ये होता था कि पुराने रिजल्ट्स के बेसिस पे रिजल्ट्स बन जाते थे। एंड हर बार मैं स्टूडेंट्स के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ जो कि मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद जो भी सीबीएसई के क्वेश्चंस होते हैं, पुराने क्वेश्चंस, उनको सॉल्व कराना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर उनको आप अच्छे से सॉल्व कर ले तो डैट मीन्स आपने उस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है। दूसरी चीज़ ये है कि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसीलिए मैं सफिशिएंट टाइम लेके चलता हूँ कि मैं सितंबर-अक्टूबर तक अपना टारगेट रखता हूँ कि सिलेबस खत्म कर लें और उसके बाद जितना एक्सटेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो सके उतना करवाने पे फोकस देता हूँ। एंड देन जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एग्जामिनेशन के बीच में गैप्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उस समय स्टूडेंट्स
उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए काफ़ी फोकस्ड रहते हैं। हम चाहे स्टार्टिंग से उनको कितना भी गाइड करें, कितना भी ब्रीफ करें, बट उस समय वो हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। सो एग्जामिनेशन गैप्स को भी मैंने यूटिलाइज करने की कोशिश की एंड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे वो इवेंचुअली सक्सेसफुल हुए। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स को मोरली बूस्टअप किया, क्योंकि वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है। होता क्या है कि अगर आप केवल पढ़ाते रहें तो एक कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन सा आ जाता है, बच्चे बोर सा फील करने लगते हैं। सो बीच में कुछ कुछ एग्जांपल्स देके मोटिवेट करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है एंड वो चीज़ भी ट्राई किया मैंने। सो इवेंचुअली सारे जो भी एक्सपेरिमेंट्स रहे वो सारे सक्सेसफुल हुए एंड बट एक कहावत है कि जो सक्सेस होता है वो एक बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। सो हम सब ने जो भी हमारे साथ में टीचर जिन्होंने रैंक अचीव किया है उन सब के लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज हो गया है कि उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, है ना, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना और उसको और बेटर करने की कोशिश करना। सो मैं प्रिंसिपल सर को एश्योर करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूंगा और आगे इसी तरीके का परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूँगा। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। Thank you, Honorable Pathak sir, for sharing your views. You rightly said that apart from teacher, students also play a very important or vital role. If students are not attentive, nobody can achieve such targets. So this is possible because of the hard work and patience and attention of the students. So thank you, Pathak sir. And I will say a few lines for you. क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज हमको हमारी मेहनत से चाहिए, हमको वरदान के रूप में नहीं चाहिए। हर चीज हमको हमारी मेहनत के दम पे चाहिए। हम हार नहीं मानेंगे, अपना बेस्ट देते रहेंगे। तो आदरणीय पाठक सर के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां बजा दें सारे बच्चे। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस ललिता देवी मैडम फॉर शेयरिंग हर एक्सपीरियंसेस। ललिता देवी मैडम। And the learned colleagues and their students. First of all, a very happy Teachers Day to all of you. आज जैसे कि टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे जिन टीचर्स का अच्छा PIA आया है उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे हमें सम्मानित किया। इसके साथ ही जैसे कि लास्ट ईयर भी मुझे ये अवार्ड मिला था, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट सेशन था उसमें मुझे हाईएस्ट PI इन इकोनॉमिक्स के लिए अवार्ड मिला था। तो उसमें भी मैंने यही बोला था कि इसके पीछे जो अवार्ड हमें मिलता है इसके पीछे जो मेहनत है वो बच्चों की है। सभी टीचर्स अपनी तरफ से बहुत अच्छा है करने की कोशिश करते हैं, अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स कहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कहाँ पे ज़्यादा अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ाई करते हैं और उन्हीं की मेहनत के कारण आज हमें यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। तो मैं 2021-22 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी मेहनत के कारण आज हमें यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। और इसके साथ ही जैसे आदरणीय पाठक सर ने बोला कि हमें अपने रिजल्ट को कंसिस्टेंट बनाना है, ऐसे ही आगे बढ़ाना है। तो अभी के जो स्टूडेंट्स हैं 2022-23 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर अपना ध्यान जो है वो मस्ती की तरफ रखते हैं, पढ़ाई की तरफ कम रखते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें और अपने पेरेंट्स के साथ अपने स्कूल का और अपने टीचर्स का जो है वो सम्मान बढ़ाए और अपनी एनर्जी का सही से यूटिलाइज करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
थैंक यू ललिता मैडम फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। कुछ पढ़ता हूँ आपके लिए भी कि अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, और रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, हौसले हैं तो विश्वास है, हौसले हैं तो विश्वास है कि जीत हमारी है, कि जीत हमारी है। तो सभी जीवन के जो कठिन जो पगडंडी है, जो डगर है, सब हमारी जो मुश्किलों की जो पगडंडी है, सभी हमारे आत्मविश्वास, हौसले, इन सब से आसान हो जाती है। कभी कभार हमारे सामने अथाह संकटों के बादल दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम उनमें से पार निकलते हैं, हौसला दिखाते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, तो धीरे धीरे बादल छटने लगते हैं और एक सुनहरा लक्ष्य हमको दिखाई देने लगता है। तो सभी विद्यार्थी एक एक चीज से प्रेरणा लें, एक एक चीज से सीखें, और कभी भी मुसीबतों को देख के ना घबराएं, और मुसीबतें जब भी दिखाई दें तो हमको उनसे युद्ध करना है, लड़ना है और उनसे आगे निकलना है। सो आगे देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, देख कर बाधा विभिन्न बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने वीर दिखलाते नहीं, भीड़ में चंचल बने वीर दिखलाते नहीं। जी हाँ, मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्यालय के सामाजिक विज्ञान के अध्यापक श्री अरविंद कुमार सर को कि वो भी अपने एक्सपीरियंस से साझा करें। अरविंद कुमार सर। Teachers are the builders of the nation. Good afternoon, respected principal sir, chief guest, all teachers and their own students. सबसे पहले मैं सभी को टीचर्स डे की आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उसके बाद आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आचार्य प्रधानाचार्य जी द्वारा जो सम्मान दिया गया है, उसके लिए प्रधानाचार्य जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आज जिस टीचर ने जो अच्छा प्रदर्शन किया है रायपुर क्षेत्र में, तो उनको सम्मानित किया गया है। ये मेरा दूसरा सर्टिफिकेट है, पहला मेरा 1920 का था और 2021 में सेकेंड वाला है। तो जैसे कभी कभी आप क्लास में बोलते हो कि आपको जो एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाता है या प्रैक्टिस पेपर दिए जाते हैं, ये विद्यार्थियों की प्रतिदिन की मेहनत, प्रतिदिन की ईमानदारी से की गई मेहनत, प्रैक्टिस और पढ़ाई का ही परिणाम है कि आज सामाजिक अध्ययन विषय में हमको ये सम्मान मिला है। ये सबसे पहले उन विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनकी बदौलत आज मुझको ये सम्मान मिला है। तो जब भी आपको क्लास के दौरान जो भी कार्य कराया जाए, आप उसको ईमानदारी से करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, ठीक है ना। आप कभी कभी बोलते हो कि सर ज़्यादा होमवर्क देते हो, ऐसा नहीं है। यदि आप पुरानी कक्षाओं में नहीं पढ़ा अच्छे से, तो उसको रिवाइज कराने के लिए आपको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाता है। उसी का परिणाम है कि आप अच्छे क्वेश्चन कर पाते हो। आप देखते होंगे प्रैक्टिस पेपर भी आपको दिए जाते हैं हर परीक्षा से पहले, तो वो इसी वजह से दिए जाते हैं कि आप उसमें अच्छा कर पाएँ और उसका परिणाम भी आपको अच्छा मिलता है। मैं हर क्लास में एक जैसा देखता हूँ, चाहे आपकी 6th क्लास हो, 8th क्लास हो या 10th क्लास हो, ठीक है ना। आप सब अभी से 6th क्लास ही अच्छा करोगे, जब आप 10th क्लास में जाओगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा 10th क्लास। तो जब भी आपको जो भी कार्य दिया जाए किसी भी सब्जेक्ट में, केवल SST नहीं, आप उसको अच्छे से करो। और आप अच्छे से करोगे, डेली रिवाइज करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, तो हर सब्जेक्ट टीचर में आपका अच्छा PI भी होगा, आपका अच्छे मार्क्स भी होंगे। और इससे पहले पिछले साल जैसे भी प्री बोर्ड हो या हाफ ईयरली एग्जाम हो, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छा कर पाएंगे, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे। जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है उसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। मेरा एक पहले से टारगेट था कि मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराए, मतलब 10th क्लास में जो भी चैप्टर पढ़ाते थे उसको प्रैक्टिस कराते थे। इस बार ऐसा नहीं हो रहा। जब हमारा सिलेबस हो जाएगा तो आपको कराया जाएगा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस से क्या होगा, हमारी सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। वो चीज़ें ईजी हो जाएगी तो हम आराम से लिख भी पाएंगे। और SST में थोड़ा एक बेनिफिट ये भी, अगर आप ऑन वर्ड में आंसर लिखते हो तो उसमें आपको आंसर का बेनिफिट मिलता है, और सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है। तो तब भी पहले तो आप राइटिंग हैबिट अपना डाल लीजिए, बिना लिखे आपको आंसर नहीं, मतलब मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिए, टू द पॉइंट, तभी आप अच्छे मार्क्स पास कर पाएंगे और उसी के आधार पर आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू अरविंद सर। अपने
विद्यार्थी कहते हैं कि ज़्यादा होमवर्क देते हैं सर, लेकिन बेटा हर चीज़ ज़्यादा बुरी नहीं होती है। होमवर्क ज़्यादा हमेशा अच्छा रहता है। ये आपको लगता है, आप क्या फीडबैक देते हैं घर पे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन होमवर्क तो हमेशा ही अच्छा रहता है। ज़्यादा देते हैं तो कम करके लाओ, लेकिन करके तो लाओगे। कम नहीं देंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो हाँ, होमवर्क इज ऑलवेज बेटर। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट द होमवर्क। एक स्टूडेंट के लिए तो होमवर्क ही सबसे बड़ा होता है, उसको अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर, आपने विद्यार्थियों को इस तरह की आदत डाल रखी है कि वो बच्चे कहते हैं कभी कभार कि प्राण जाए पर होमवर्क न जाए, अरविंद सर के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थी चाहे कुछ भी कहते रहे, लेकिन अल्टीमेटली तो उन्हीं का भला होता है। सो पथ भूल न जाना पथिक कहीं। विद्यार्थियों आपके लिए कह रहा हूं, कुछ लाइनें हैं, कुछ पंक्तियां हैं। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे। जीवन की राह आपको आसान नहीं मिलेंगी। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही। दुर्बादल सरता सर होंगे, सुंदर गिरवन पापी होंगे। सुंदरता की मृत तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे। जब कठिन कर्म पगडंडी पर, जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा। जब सपने सब मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा। तब अपनी प्रथम विफलता में, तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे। अपने भी विमुख पराये बन, अपने भी विमुख पराये बन आंखों के आगे आएंगे। पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे। तब अपने एकाकीपन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे। रणभेदी कर कर विदा विदा, रणभेदी कर कर विदा विदा। जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए कुछ जलकर झुलक रहे होंगे। कर्तव्य प्रेम की उलझन में, कर्तव्य प्रेम की उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे, पथ में कांटे तो होंगे। आगे की कड़ी में मैं आदरणीय डॉक्टर श्रावणी सिंह। धन्यवाद सर। एक बार पुनः आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज का दिन मेरे जीवन के लिए इतना खास बनाने के लिए मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये वास्तव में सरप्राइज था। मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये होने वाला है, और हमेशा याद रहेगा सर ये। और हम टीचर्स मेहनत करते हैं, बैक स्टेज पर्दे के पीछे मेहनत करते हैं, लेकिन इस सम्मान तक तभी पहुंच पाते हैं जब हमारी उस मेहनत को हमारे बच्चे मंच पर 100% देते हैं। तो ये जो भी सम्मान मुझे आज मिला है, ये मैं अपने उन सभी बच्चों के साथ साझा करूंगी जिन्होंने मेरी मेहनत को मंच पर प्रदर्शित किया, उसके साथ न्याय किया। मेरे सभी होनहार बच्चे, चाहे वो मॉर्निंग असेंबली में प्रेजेंट करते हों, क्लास में प्रेजेंट करते हों, या कॉम्पिटिशन्स में अलग अलग परफॉर्मेंसेस में प्रेजेंट करते हों, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और ये काम तभी हो पाता है जब हमें एक अनवरत गाइडेंस, एनकरेजमेंट, मोटिवेशन मिलता रहे, एक स्ट्रेस फ्री माहौल मिले, प्लेटफॉर्म मिले कि जहां हम खुलकर काम कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें, अपनी बात रख सकें, और जो हम करना चाहते हैं उसके लिए हमें संरक्षण के साथ साथ आज़ादी मिलती है। और ये सब कुछ संभव हो सका है आदरणीय प्राचार्य महोदय के गाइडेंस की वजह से। तो आई ओ इट टू यू सर एवरीथिंग व्हाटएवर आई हैव अचीव्ड इन केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़। थैंक यू सो मच
थैंक यू सो मच टू माय एंटायर केवी खैरागढ़ फैमिली, जिनका हमेशा मुझे सपोर्ट मिला, प्यार मिला, एनकरेजमेंट मिला। आप सभी का सहयोग ही मुझे काम करने के लिए स्ट्रेंथ देता है। तो मैं जो भी हूँ आप सभी की वजह से हूँ। तो एक बार पुनः मैं आप सभी को हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद श्रावणी मैम। अपने मंच पर एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहूंगी जिनके उद्बोधन के बिना हमारे विद्यालय का हर एक आयोजन अधूरा सा है। जी हाँ, आप सभी बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बहुत ही सरल, कर्मठ, प्रभावशाली व्यक्तित्व हमारे विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय। सर, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया एक बार फिर मंच पर आएं और अपने आशीर्वाद वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय। I, on behalf of Kendriya Vidyalaya Khairagarh family, pay tribute to Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, the great teacher of this country and the second president of our country on this auspicious occasion, that is on Teachers' Day. Teachers are a guide, a mentor and counselor, and of course like a friend. It is considered as a Brahma, Guru and Sakshat Guru and mothers and fathers. अभी अभी बच्चों ने अपने वक्तव्य में गुरु की महिमा की है और ये वही दिन है जब हम गुरु का सम्मान करते हैं और सम्मान करना सीखते हैं। केवल बातों से नहीं, केवल विचारों से नहीं, बल्कि वो आपके व्यवहार में दिखना चाहिए, झलकना चाहिए और आपकी आत्मा में बसना चाहिए कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ब्रह्मा या गुरु या टीचर। संस्कृत का जो प्रसिद्ध श्लोक है, जो भारतीय परंपरा है, जिसमें गुरु को ब्रह्मा के समकक्ष रखा है, जो हम संस्कृत में गाते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संस्कृत के श्लोक में गुरु की वंदना और गुरु की महिमा की गई है। तो आपको ज़्यादा ना बताते हुए मैं अति संक्षिप्त बातों में आपको बतलाना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एरा एंड द प्रीवियस एरा। या प्राचीन काल में गुरु की जो मर्यादा थी, जो मान सम्मान था, वो कालांतर में भावनाओं के साथ नहीं जुड़ पाने की वजह से वो भावनाएं विलुप्त सी हो गई हैं, जिसके बहुत से कारण हो सकते हैं। यूज ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप एंड एवरीथिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम द इंटरनेट। इसलिए गुरु का स्थान जो होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी आई एम वेरी प्राउड बिकॉज आई एम अ टीचर। टीचर होना अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि टीचर को माता पिता का दर्जा दिया गया है और टीचर को गुरु, विष्णु और ब्रह्मा का दर्जा दिया हुआ है। तो टीचर बनना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। और दुनिया के तमाम जो पेशे होते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, एयर होस्टेस, इसके अलावा और भी प्रोफेशन है, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर।
और सभी प्रकार के जो प्रोफेशन होते हैं उन सभी प्रकार के प्रोफेशंस में, व्यवसाय में या जो कार्य करने का तरीका है वो टीचर का स्थान सर्वोपरि होता है। इसीलिए टीचर को कहते हैं इट इज़ अ नोबेल कोच और जॉब। टीचर्स बनना अपने आप में सौभाग्य की बात है, और यदि हम तुलना करते हैं तो सभी लोगों से टीचर का स्थान सर्वोपरि होना चाहिए आपके जीवन में, हमारे जीवन में और सभी के जीवन में, क्योंकि टीचर ही व्यक्ति को डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, एयर होस्टेस बनाते हैं या समाज में रहने के लायक बनाते हैं। तो टीचर्स के बारे में आदरणीय लोकेश सर ने बताया कि टीचर्स एक ऐसे कैंडल होता है जो जलता जरूर है और दूसरे को प्रकाशमान करता है, और हम भी अपेक्षा करते हैं कि बच्चे भी अपना कर्तव्य अपना ड्यूटी बखूबी समझें। आज के इस प्रोग्राम में हमारे कुछ टीचर्स, हम उसको बोलते हैं विशेष टीचर, एक्सीलेंट टीचर, आउटस्टैंडिंग टीचर, बेस्ट टीचर या वेरी गुड टीचर या ऑर्डिनरी टीचर बोलते हैं। तो यह अपने आप को जानने का एक समय है कि हर टीचर में आपको एक माता और पिता की छवि दिखना चाहिए। तो आदरणीय सभी शिक्षकगण जो माता तुल्य और पिता तुल्य हैं, उनको इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। एक छोटा सा कंपैरिजन बताना चाहूँगी। जो एक दौर था जब हम स्कूल जाया करते थे, क्लास 1 के टीचर को शिशु क्लास टीचर कहा जाते थे, शिशु टीचर। और उन दिनों आज के जैसे व्हीकल, मोटरसाइकिल या ऐसे साधन नहीं होते थे, तो गुरु की वंदना, गुरु की महिमा इतनी ज़्यादा होती थी कि यदि आप साइकिल से जा रहे हैं तो हम साइकिल से उतर करके गुरु को प्रणाम करते थे। इतना रिस्पेक्ट, इतना सम्मान, इतना मर्यादा आज के परिवेश में देखने को यत्र तत्र या नहीं के बराबर मिलता है, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि हमारे पास संसाधन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। 2 दिन पहले आदरणीय डिप्टी शर्मा मैडम ने बताया था कि हम भावनात्मक रूप से दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाते हैं, प्रकृति के साथ जो हमारे संसाधन हैं, किसी न किसी कारणवश से हम टीचर्स और बच्चों के बीच जो एक अनसीन बॉन्डिंग होता है, एक बॉन्ड बन जाता है, वो नहीं बन पाता है, भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाते हैं। तो यही टीचर्स डे वह दिवस होता है जो आप भावनात्मक रूप से बच्चों से और टीचर एक दूसरे से जुड़ें, ताकि जो भी आपका कार्य है, टीचर का काम अध्ययन करना, अध्यापन करना, बच्चे का काम है अध्ययन करना, तो जो भी हम पर्पसफुली हम यहाँ बैठे हुए हैं, स्कूल भेजे गए हैं, स्कूल आए हुए हैं, तो हम एक्सीलेंट की तरफ जाएंगे या जो भी हमारा काम आसान और सरल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस अवसर पर इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी सबक, जो भी सिखलाई, जो भी लेसन मिला हुआ है उसको आप अपने जीवन में उतारें और हमेशा अपने से बड़ों का, अपने गुरुजनों का और अपने माता पिता का सदैव सम्मान और आदर करें। केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक परंपरा रही है कि आज के दिवस को हम खास बनाने के लिए हमारे बीच में जो शिक्षा जगत से जुड़े होते हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है, उनको सम्मान और आदर दिखाना चाहते हैं इस शिक्षक दिवस के अवसर पर। हमारा यह बहुत ही सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में आदरणीय एस.सी. शर्मा जी, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लगभग 14 साल जुड़े रहे, इसके पूर्व इंडियन एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दी है और बेसिकली हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के लिए या टीचिंग के रूप में दिया है, एज एन इंस्ट्रक्टर, एज ए लेक्चरर, एज ए प्रिंसिपल एंड एज ए एजुकेशन ऑफिसर। तो आपकी जानकारी के लिए मैं
इनका संक्षिप्त परिचय बतलाना चाहूँगा, हालांकि हमारे लोकेश सर ने बता दिया था। आपका जो कैरियर एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के रूप में एयरफोर्स में 1969 में हुआ। तत्पश्चात आपने बीए ऑनर्स और मैथमेटिक्स तथा एमए इंग्लिश में पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएड की डिग्री हासिल की और साथ ही साथ मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने ये डिग्रियां हासिल की है। 1985 में आपने इंग्लिश लेक्चरर के रूप में हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया। तत्पश्चात प्रमोशन के द्वारा आप 1997 में प्रिंसिपल का पद ग्रहण किए थे और लगभग 11 वर्षों तक अपनी सेवाएं हिमाचल प्रदेश सरकार या गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन हिमाचल प्रदेश में दी हैं और डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन के रूप में 2008 से 2009 तक सेवाएं देते रहे और आप 2009 में सेवानिवृत्त हुए हैं। आपको इस अवसर पर हमारे विद्यालय में प्रांगण में पा करके हम धन्य हुए हैं सर। ये हमारा सौभाग्य है कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया है, हमारे बच्चों को लिए दिया है। निश्चित ही आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होगा और हम आज बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। Thank you, Honorable Principal Sir, for your word of wisdom. So, जैसा कि आदरणीय प्राचार्य महोदय ने हमें बताया कि आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री एस.सी. शर्मा जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और अभी इसी स्वागत की कड़ी में we would like to felicitate our chief guest of today's program, Shri S.C. Sharma sir. I request Honorable Principal sir to present him a shawl, a Srifal and a memento as a token of appreciation or love from Kendriya Vidyalaya Khairagarh. Give a big round of applause. जोरदार तालियां बजा दें विद्यार्थियों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आज का अनुग्रहित महसूस कर रहे हैं। आप केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़ में आपकी उपस्थिति गरिमामयी रही है और ये स्मृति चिन्ह मोमेंटो हमारे केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़ की तरफ से आपको सप्रेम भेंट की जा रही है। एक बार पुनः तालियां विद्यार्थियों। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य महोदय, मुख्य अतिथि महोदय। एक कुछ स्वागत लाइन में बोल देता हूँ एक बार पुनः, हालांकि मैं बोल चुका हूँ कि वो आ गए जिनका इंतजार था, वो आ गए जिनका इंतजार था, आओ खुशियों के दिए जला लें। आज के मुख्य अतिथि के स्वागत में सब लोग जोरदार तालियां बजा दें, सब लोग जोरदार तालियां बजा दें। So now I would like to invite our honorable chief guest. माननीय प्रिंसिपल महोदय, शिक्षकगण, मेंबर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि इस महान दिवस के ऊपर मुझे यहाँ ऑनर किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने जो रेवोल्यूशन अभी देखा है, by having entered in this institution, I am reminded of my school days.
let us say in 60s, 61, 62, 63. This revolution has been brought by the sustained efforts of great education thinkers, our teachers. When I studied in high school, there were around 1800 students in that school, and merely 2 girl students were there. And this revolution has been brought by great educationists. Like Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, प्राचीन काल में भी शिक्षक और स्टूडेंट्स थे, लेकिन उन दिनों शिक्षा जो है इट वॉज मेरली कन्फाइंड टू सर्टेन क्लासेस. एजुकेशन वॉज कंसिडर्ड एज sacred. Literacy was considered sacred, and it was imparted only to selected few. It was the role right of royal people, the nobility, and it was never imparted to laity. आम लोगों के लिए शिक्षा नहीं थी. प्राचीन काल से शिक्षा के जो शिक्षक थे वो या तो साधु संत थे या प्रॉफिट्स थे जो अपने मठों में शिक्षा दिया करते थे. लेकिन शिक्षा का ये रूप जो है हमारे जो एजुकेशन के थिंकर्स हैं, जो रेवोल्यूशनिस्ट हैं, उनका योगदान है. ऐसा हमने सुना है कि सबसे पहले शिक्षक महान चीनी फिलोसफर कन्फ्यूशियस थे, who lived around 500 years before Christ. उसने ये परंपरा तोड़ी थी कि एजुकेशन should not be confined to selected few. It should be given to needy people. ये ऐसा नहीं है कि रॉयल लोगों के बीच में या नोबल्टी को ही दी जाए. उसने कहा कि ये नीडी को दिया जाए जो शिक्षा चाहता है. Later on, the same thing was emphasized by Aristotle also. Aristotle was more harsh in his observations. Aristotle जो है अपनी ऑब्जर्वेशन में ज्यादा ही सख्त थे. उसने कहा those who educate the children well are to be honored than those who give birth to them. उन्होंने माता पिता के स्थान से ऊपर गुरु को रखा है. बाद के दिनों में जैसे हमारे महान गुरु वो कौटिल्य थे, कौटिल्य ने भी इस ओर बढ़ावा दिया, शिक्षा की ओर बढ़ावा दिया. लेकिन बाद के दिनों में जो योगदान सावित्री बाई फुले जी का है, आज जिस रेवोल्यूशन के बारे में मैं करना चाहता हूं, जिस रेवोल्यूशन के बारे में जबकि रेशो में 1800 में सिर्फ 2 लड़कियां पढ़ा करती थी, इनका योगदान सावित्री बाई फुले जी को जाता है, जिन्होंने शिक्षा लड़कियों को देना शुरू की, उन वर्गों की लड़कियों को देना शुरू की जो पहले शिक्षा से वंचित थी. आज ये जो रेवोल्यूशन है ये हमारे महान जो शिक्षाविद थे उन्हीं की बदौलत है. और आज का दिन जब डॉक्टर राधाकृष्णन जी के कुछ स्टूडेंट्स उनके जन्मदिन को मनाना चाहते थे तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मेरा जन्मदिन ना मनाइए, अगर आपने मनाना ही है तो मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए.
तो ये जो सारी क्रांति है ये शिक्षकों की बदौलत है, चाहे वो आदि कवि श्री वाल्मीकि हों या आधुनिक युग के शिक्षक मेरे साथी, सभी का योगदान जो है वो इसमें भुलाया नहीं जा सकता। मैं इस स्कूल के शिक्षक गणों को आज के दिन की एक बार फिर बधाई देता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि वो अपना कार्य, जैसे यहाँ मुझे आके पता लगा कि बहुत ज़्यादा डिवोशन, एग्रेशन और पैशन के साथ किया जाता है, वो करें ताकि बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो लेटर स्टेज के ऊपर हमारी एवेल्यूएशन ठीक ढंग से करें। बच्चे अपने शिक्षकों की एवेल्यूएशन करते हैं, दे एवेल्यूएट देयर टीचर्स एट द लेटर स्टेज व्हेन विजडम डाउन्स ऑन देम। जैसे कि हम आज उन क्रांतिकारियों को, शिक्षा के क्षेत्र की उन क्रांतिकारियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने ये शिक्षा में क्रांति लाई है। मैं एक बार फिर अपने प्रिंसिपल महोदय, शिक्षक गणों और बच्चों को इस दिन की बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आशीष वचनों के लिए। और जिस तरह से आपने बताया शिक्षा का इतिहास, कि पहले शिक्षा सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों तक ही सीमित थी, बाद में शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग महापुरुषों ने, और अभी आदरणीय सर ने बताया कि महिलाओं की शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए भारत की पहली महिला शिक्षक, आपको पता है विद्यार्थियों, भारत की पहली महिला शिक्षक जानी जाती हैं सावित्रीबाई फुले, और उनका विशेष योगदान है कि सभी वंचित, शोषित सभी वर्गों की महिलाएं, लड़कियां, सबको एजुकेशन मिले। उन्होंने इस क्षेत्र के में काफ़ी लड़ाइयाँ की और काफ़ी गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए और बच्चों को इस ज्ञान को बताने के लिए, जानकारी को बताने के लिए। तो अभी आगे की कड़ी में हम प्रोग्राम को समापन की ओर लेके जाएंगे। तो वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आदरणीय श्रावणी मैडम को इनवाइट करना चाहूँगा। हाँ सॉरी, एक वोट ऑफ थैंक्स हमारे विद्यार्थियों ने भी तैयार किया है। वो विद्यार्थियों के जो प्रोग्राम थे उनके लिए वोट ऑफ थैंक्स अंजलि को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। अंजलि। Happy Teachers Day to all. Wish you all a very marvelous afternoon. I am Anjali Singh of class 12A, here to express my gratitude toward our chief guest that he gave his precious time and attend our program. I next thanks our principal sir for all his guidance and suggestion. I also thanks all the respected teachers for helping us and showing us to make this program a success at this extent. Mr. Lokesh sir, Ms. Garima ma'am for hosting the program, Dr. Amarnath Pathak sir for his great speech and teaching us. Thank you sir, we are really appreciate to the change. I would like to thank the participants in the program, Mahi Verma as anchoring and Moksh and Manvi class level, Moksh and Manvi class 8 for their elegant performance and Tanisha for her beautiful poem. And next I am thankful to Mahi Singh, Neha Bhagat and Gaurav Geharwar of class 12 for sharing their teaching experience and Shaurya of class 12B for the welcome speech along with this. I thank all the working staff for the arrangement which was not all the possible without their help. And I am thankful to all the students present here for being there. At last, I am thankful to all my batchmates for the management and cooperation.
Thank you very much to all of you and have a great head. Thank you. Now I invite Dr. Shravani Madam for a vote of thanks. Thank you so much, sir. Better than 1,000 days of diligent study is one day with a great teacher. We all know how teachers play the most important role in everyone's life. Not only they guide their students in academic or extracurricular activities, but teachers are also responsible for shaping a child's future, making him her a better human being. A teacher imparts knowledge, good values, tradition, modern day challenges and ways to resolve them within their students. And we are so fortunate who have been chosen for this noble profession to be that role model for our students. A very grateful and warm good afternoon to our most valued chief guest, Shri S.C. Sharma ji, respected Principal Sir, H.M. Ma'am, learned teacher friends and my dear students. It is my privilege to have the opportunity to propose vote of thanks on the auspicious occasion of Teachers' Day celebration. First of all, let me start by giving glory to the Almighty God for making today's celebration a resounding success and memorable day for all of us. We are grateful to our chief guest, Shri S.C. Sharma ji, for sparing his valuable time for us and gracing this function with his presence. Thank you so much, sir. A mentor is someone who allows you to know that no matter how dark the night is, in the morning, joy will come. A mentor is someone who allows you to see the higher part of yourself when sometimes it becomes hidden to your own view. This occasion had never been a resounding success without the guidance and support of our beloved Principal Sir. Thank you so much, sir, for always encouraging and showing path to all of us. Thank you, sir. Now, I'll move on to the members and students who have given their valuable efforts for making this program a successful one. First of all, I would like to thank all the students of class 12 who played the role of teachers today and experienced how it feels to teach someone who is younger than you and put your effort to make something better for their future. So thank you all the students of class 12. I would like to thank Shaurya Kumar, Manvi Bagarkar, Neha Bhagat, Tanisha Vaishnav, Gaurav Gaharwar, students of class 11 who presented the group dance, Mahi Namdev, and all the students who were anchoring here, Mahi Verma, and other students who supported her. Thank you so much all the students for putting your special effort for making today's program a successful one. I would like to thank Dr. Amarnath Pathak sir. I would like to congratulate Dr. Amarnath Pathak sir, Lalita ma'am, Arvind sir for your today's success. The certificate, the citation what you got, congratulations to all of you. I would like to thank different committee members among teachers, Stage Decoration Committee, Srimati Rachna Pal ma'am, Srimati Reena Sahu ma'am, Mrs. Monica Sharma ma'am and Reena Devi ma'am for putting your effort to make
the stage decoration and arrangement for today's program. Thank you so much. I would like to thank the members of Seating Arrangement Committee, Shri Hitesh Sharma sir, Shri Alok Kumar sir, Shri Ashish Kumar sir, Shri Sushil Visne sir, for making the seating arrangement for today's program. Thank you so much. The Photography and Video Recording Committee, Shri Naseem Raza Khan sir and Shri Shubham Yadav sir, for making today's program a memorable one, capturing all the photographs and videos, and continuously you both are standing here and recording all the programs. So special thanks to both of you. Thank you sir. I would like to thank Shri Sudhakar Nandanwar sir and his team of students, Vipul, Diktar, for the PA system arrangement and managing all the sound systems, sitting continuously inside the room. Thank you so much sir and your team. I would like to thank Sumant Yadav sir and all the teacher members of discipline committee for maintaining the discipline for today's program. Without discipline, this program wouldn't have been conducted peacefully. So thank you so much. I would like to thank Lokesh Kumar sir, Garima ma'am for anchoring part. You both have made this program in very beautiful manner. जैसे मोती पिरोते हैं ऐसे आपने पूरे प्रोग्राम को पिरो के रखा. So thank you so much Lokesh sir and Garima ma'am for your valuable effort. I would like to thank Didi, Munni Didi, Janki Didi, Sonia Didi, Nandlal Bhaiya for your special contribution for making today's and everyday's program and arrangements. Because of your help only we are able to conduct such programs. So thank you so much all. I would like to thank Amrita ma'am for being behind the curtain and making everything in proper manner. Thank you so much ma'am. I would like to thank each and everyone who has put their effort directly or indirectly and for making this occasion a successful one. Thank you so much. At last, I will end my speech by saying that Teachers' Day is not just about a day. It's more about celebrating the teachings they have inculcated in us and carrying those values and teachings ahead with the wisdom of knowledge. Thank you so much. And yeah, I would also congratulate all the students who got certificate for Kala Utsav and Ek Bharat Shresth Bharat competition. So at last, I thank one and all present here. Thank you so much and have a great day. थैंक यू मैडम. तो अभी प्रोग्राम की हम समाप्ति की घोषणा करते हैं. और वंस अगेन धन्यवाद सर, हमारे मुख्य अतिथि सर, आदरणीय प्राचार्य महोदय, समस्त विद्वान शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद.